بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 10 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کھڑا تھا، مگر اس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ بال بکھرے اور چہرے پر عجیب گھبراہٹ اور وحشت تھی۔ میں نے اس کی حالت کو نظر انداز کر کے سلام کیا، مگر اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا اور مجھ سے نگاہیں چراتا ہوا اندر چلا گیا۔ حالانکہ بھائی عمر میں مجھ سے 8 سال بڑے تھے اور ان کا گھر میں کافی روب تھا۔ وہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے گھر کے اندر آتے تھے، مجھے پیار کرتے اور میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور لاتے تھے، مگر آج ایک تو وہ خلاف معمول بہت لیٹ آئے تھے اور دوسرے انہوں نے ہماری کسی بات کا جواب نہ دیا۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کر امی ابو اور ہم بہنیں پریشان ہو گئیں۔ ہم 3 بہنیں تھیں، بھائی ایک ہی تھا، اسی لیے بہت لاڈلا اور عزیز تھا، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے گھرانے کا ماحول بہت مذہبی تھا، اسی لیے ابا نے 2 بہنوں کی شادی جلدی ہی کر دی۔ اب گھر میں صرف میں اور میرا بھائی بچا تھا۔ میری عمر ابھی 18 سال تھی، میرا گریجویشن مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرے امی ابو بھائی کی شادی کے بعد میری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر بھائی کو کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے خاندان میں موت کو طلاق پر ترجیح دی جاتی تھی۔ مرنا قبول کرتے تھے، مگر ایک بار شادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی اس بندھن کو نبھاتے ضرور تھے۔ اسی لیے بھائی چاہتے تھے کہ ان کی ہونے والی شریک حیات لاکھوں میں ایک ہو، اور اسی لاکھوں میں ایک کے چکر میں 4 سال یوں ہی گزر گئے، مگر بھائی کی من پسند لڑکی نہ ملی۔ کئی جگہوں پر تو اس لیے انکار ہو گیا کیونکہ ہمارے گھر کے مالی حالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ لوگ زیور اور مہر کے نام پر جو کچھ مانگتے تھے وہ تو ہماری استطاعت سے ہی باہر تھا، سو یوں ہی شادی التوا میں پڑتی رہی۔ اس بات پر کئی مرتبہ بھائی کا امی ابو سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا اور وہ اکثر ہی غصے میں گھر سے باہر نکل جاتے تھے، مگر اب کچھ دنوں سے انہوں نے شادی کی رٹ چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگے تھے، مگر آج تو گھر میں ماحول خوشگوار تھا۔ بھائی کی یہ حالت ہماری سمجھ سے باہر تھی۔ اگلے دن بھی بھائی نے کسی سے بات نہیں کی، وہ سارا دن کمرے میں بند رہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ ان سے بات کریں، مگر وہ منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان کا رویہ یوں تھا جیسے کوئی بہت بڑا جرم ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ امی ابو نے اب شادی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ اب کے بار بھائی نے ایک انوکھی خواہش کا اظہار کر دیا۔ بھائی کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہو۔ امی ابو کے لیے اب یہ ایک نیا سر درد تھا، مگر پھر بھائی کی بات تو ماننا تھی۔ وہ بھی ضد کے پکے تھے، منہ سے ایک بات نکال لیں تو وہ پھر پوری کروا کر ہی دم لیتے تھے۔ امی ابو نے بہت تلاش کیا، مگر ایسی کوئی لڑکی نہ ملی۔ بالآخر ایک جاننے والے کے توسط سے امی ابو نے خوشخبری سنائی کہ ایک نہایت ہی معزز اور خوشحال گھرانے کا رشتہ میسر آ رہا ہے۔ وہ لوگ لڑکے کی مالی مدد کرنے کی بھی حامی بھر رہے ہیں، جبکہ مہر اور زیور کے نام پر بھی ان کا کوئی ناجائز تقاضا نہیں ہے۔ وہ لوگ شرافت سے اپنی بیٹی بیاہنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کو خدا خدا کر کے کسی معزز گھرانے کا رشتہ میسر آیا تھا، سو یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بابر خان ایک غیور خاندانی آدمی تھا، وہ ایک ہی بات کرتا تھا، اسی لیے ہم اس کی بات کو بھی اہمیت دے رہے تھے۔ اس نے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ فوراً ہی 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کرنا ہوگی۔ اس کی انہوں نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، مگر ہم لوگوں کو ان کی بات ماننا پڑی۔ یوں یہ رشتہ عجلت میں طے کیا گیا اور پھر کم وقت ہونے کی وجہ سے زور و شور سے تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر کو ہم 3 بہنوں کا وہ اکلوتا بھائی تھا۔ ہم نے جی بھر کے بھائی کی شادی پر اپنے ارمان پورے کیے۔ شادی والے دن بھائی بھی بہت خوش تھا، وہ اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، اس کا سینہ تو فخر سے چوڑا ہو رہا تھا۔ آخر کو اس کو اپنی من پسند دلہن جو مل گئی تھی، اگرچہ ابھی تک اس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر ماں اور بہنوں سے دانیہ کی اتنی تعریفیں سنی تھیں کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ یوں بھی بھابھی کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا۔ پچھلے ماہ ہی انہوں نے مدرسے سے 4 سالہ تعلیم کی سند حاصل کی تھی، شاید اسی لیے ان کے والد نے بھی شادی میں جلدی دکھائی تھی۔ دوست احباب بھی والدین کے اس فیصلے کی تعریف کر رہے تھے۔ شام کے 10 بجے ہم دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے۔ دانیہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی تھی۔ ہم تو اسے دیکھتے رہ گئے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھائی دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں ہمارے گھر کے بڑے ہال میں بیٹھی تھی، جہاں محلے کی سبھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ زیادہ تر خواتین پردے دار تھیں، اس لیے ہم نے بھائی کو کمرے میں نہیں آنے دیا۔ خیر بھائی کے پاس دلہن کے لیے وقت ہی کہاں تھا، دوست احباب نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ شادی کا دن اختتام پذیر ہوا۔
तो मैंने भाई से 4000 रुपये की खतीर रकम लेकर उनको कमरे में जाने की इजाज़त दी। उन्हें हंसी मजाक के झुरमुट में भाभी के पास छोड़कर हम बहनें अम्मी के पास बैठ गईं। हम लोग मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे थे। कोई उनके बच्चों के नाम सोच रहा था तो कोई बच्चों की तादाद पर बहस कर रहा था। थोड़ी देर में भाई के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोगों को कुछ खटका ज़रूर हुआ, मगर अपनी अपनी जगह बैठे रहे। सोचा कि खुद ही मसला हल कर लेंगे। 5 मिनट भी ना हुए थे कि भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो गुस्से में भुनाए हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अम्मी भी परेशान हो गईं। हम बहनें भाई के गिर्द जमा हो गईं, मगर उनकी आंखें तो शोले उगल रही थीं। हम लोग पूछते रह गए, भाई कुछ तो बताएं क्या हुआ है, मगर भाई अब्बू को ढूंढ रहे थे। इतने में अब्बू शोर सुनकर खुद ही आ गए। उनके आते ही भाई चिल्ला उठे, हालांकि ऐसी गुस्ताखी उन्होंने कभी नहीं की थी। अब्बू, ये शराफत देखी है आपने इन लोगों की? आपने तो कहा था लड़की बड़ी दीनदार है, मगर ये तो। भाई कहते कहते रुक गए। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। इल्ज़ाम तो उन्होंने दानिया पर लगा दिया था, मगर उसकी वजाहत भाई के पास नहीं थी। दानिया की ऐसी वैसी कोई बात हमने कभी नहीं सुनी थी। अम्मी अबू हैरान परेशान रह गए। खुदा खुदा करके तुम्हारी शादी की है और अब तुम्हें फजूल के नखरे सूझ रहे हैं? अबू ने भाई को डांटा, और खबरदार अगर तुमने कोई ऐसी वैसी बात सोची तो। अबू का इशारा अलहदगी की तरफ था। हमेशा की तरह भाई हमसे लड़ झगड़ कर घर से बाहर चले गए। हम लोग उन्हें आवाज़ें देते रह गए, मगर उन्होंने किसी की न सुनी। दानिया से शादी से पहले भी मेरी थोड़ी बहुत बेतकल्लुफ़ी थी, और यूं भी वो मेरी हम उम्र थी। बड़ी बहनों को उनके शौहर लेने आ गए थे। अब वो तकरीबन घर से जा रही थी। ऐसे में अम्मी ने बात संभाली और मुझे दानिया के कमरे में भेज दिया, ताकि मैं उससे असल वजह मालूम कर सकूं। कमरे में गई तो कमरे की हालत अजीब थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि मुबादा कोई इधर ना आ जाए, और कमरे की हालत देखकर खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी बात न कह दे। खैर, अभी ये मामला हम तक ही था। इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। भाई के मिजाज से हम सभी वाकिफ थे। भाभी के कमरे में जो हमने सेज बनाई थी वो ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। गुलाब की पत्तियां रौंदी जा चुकी थीं, जबकि भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। काजल फैल कर गालों तक आ गया था। उसकी हालत देखकर तो मैं भी सचमुच घबरा गई। मैंने पानी पिलाया तो वो कुछ नॉर्मल हुई। मैंने कहा, दानिया आखिर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? मगर वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझसे उसकी हालत देखी न जाती थी। मैंने कमरे का लैंप ऑन कर दिया और लाइट ऑफ कर दी कि शायद उसकी झिझक कुछ कम हो, और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने दानिया को लिटा दिया। उसको ज़रा सुकून आया तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और बातें करने लगी। बड़ी मुश्किल से वो नॉर्मल हुई और अपनी कहानी बताना शुरू की। सानिया, तुम जानती हो मेरे घर वाले और मेरे ख़ानदान की कितनी इज्जत और कितनी नेकनामी मशहूर है। अब्बू ने हम बहनों की बहुत अच्छी तरबियत की है। अम्मी ने भी हमेशा पर्दे का दर्स दिया। ये बात सच है कि मैंने कभी घर से बिला ज़रूरत कदम बाहर नहीं निकाला, मगर इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो उसके नसीब में लिखे होते हैं और शायद होकर ही रहते हैं। मेरी बचपन से एक ही सहेली थी। मैं और एमन एक दूसरे के बगैर कम ही रहते थे। वो अक्सर मेरे घर पाई जाती और मैं उसके घर से न निकलती। कुछ दिन पहले जब उसकी शादी की तारीख ठहरी तो मैं उसको खोने के खौफ से ही डर गई। अब मैं अक्सर उसके घर आती जाती रहती थी। अम्मी अबू मना नहीं करते थे, क्योंकि एमन के घर वालों को अम्मी अबू अच्छी तरह जानते थे। एमन की शादी की तारीख तय हुई तो हम सहेलियों ने महीना पहले ही ढोलकी रख ली, क्योंकि मिल बैठने का ये आखिरी मौका था। शाम के 6 बजते ही मैं अपनी दीगर सहेलियों के साथ एमन के घर चली जाती, जहां हम मिलकर शादी वाले गीत गाती थीं। उस दिन शाम के 6 बजे हमारे कोई मेहमान आ गए। मुझे उनको चाय बनाकर देते देते देर हो गई। सबा आंटी की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, वो गई तो मैं शाम के तकरीबन 8 बजे घर से निकली। मैं एमन के घर की तरफ ही जा रही थी। अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर मेरे पास रुकी। आन की आन गाड़ी से 2 लड़के निकले। उन्होंने मेरे मुंह पर रुमाल रखकर मुझे अपनी गाड़ी में धकेल दिया और किसी नामालूम मकाम पर ले गए और मुझे बर्बाद करके मेरे घर के करीब ही फेंक गए। इत्तेफाक से मेरे अब्बू उसी वक्त घर वापस आ रहे थे। वो तो किसी और की बेटी समझकर मेरी तरफ आए थे ताकि मुझे सहारा दे सकें और मेरी मदद करें, मगर बदकिस्मती से उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी ही पड़ी थी, जो बर्बादी की तस्वीर बनी हुई थी। अब्बू की आंखों में जो दर्द मैंने उस वक्त देखा तो समझ गई कि लोग बेटियों की पैदाइश पर क्यों खुश नहीं होते। बेटियों से नहीं, लोग उनके नसीब से डरते हैं। मैं लुटी पुटी अब्बा के साथ घर पहुंची तो अम्मा को मेरी हालत से ही सारी कहानी समझ में आ गई थी। हम लोग किसी से क्या शिकवा करते और क्या इंसाफ मांगते।
इंसाफ मिल भी जाए तो लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आती ना। अम्मी अब्बू ने ना मुझे किसी डॉक्टर को दिखाया, ना ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना किसी वकील से राब्ता किया। वो खामोशी से अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए मुझे जल्द अज जल्द ब्याहना चाहते थे। इसीलिए अम्मा अब्बा ने मेरी शादी के लिए ना ही किसी से जेवर का मुतालिबा किया और ना ही हक मेहर के नाम पर बड़ी रकम लिखवाई। वो जल्द अज जल्द मेरा घर बसाना चाहते थे। जब तुम्हारे भाई का रिश्ता मेरे लिए आया तो अम्मा अब्बा ने खुशी का इजहार किया। तुम लोग भी हमारी तरह के ही सादा मिजाज लोग थे। अम्मी अब्बू ने किसी से मशवरा नहीं किया और बस मेरी बात पक्की कर दी। खानदान के सभी लोग मेरे इस अचानक रिश्ते पर हैरान थे, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी हूँ। मुझे ब्याहने के उनके हज़ारों अरमान थे, मगर अब जो कुछ हम पर बीत चुकी थी उसके बाद हम क्या अरमान पूरे करते। हमारी इज्जत बच गई थी, यही बहुत था। मगर मुझे क्या पता था कि ये मेरी खुशफहमी होगी। उस रात मैं उन लड़कों का चेहरा देख नहीं पाई थी, क्योंकि उनके चेहरों पर नकाब थे। तुम्हारे भाई ने ये इंकशाफ तो आज मुझ पर किया है कि उन लड़कों में से एक वही था। वो मेरे मुंह पर थूक कर गया है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी शादी उसी शख्स से होगी। अगर मुझे पहले इल्म होता तो मैं डूब कर मर जाती, मगर ऐसे घटिया इंसान से शादी न करती जिसने लम्हों की तस्कीन के लिए मुझे बर्बाद कर दिया। अब तुम ही बताओ, क्या घर से लेट निकलने वाली हर लड़की पर मुआशरे के दरिंदों को उसे बर्बाद करने का हक होता है? दानिया की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे तो राशिद को भाई कहते हुए भी घिन आ रही थी। दानिया की बात मुकम्मल होने के बाद मैंने जाकर अम्मी को हूबहू सारी बात बता दी, क्योंकि बात अब भाभी की इज्जत की थी। अम्मी ने ये बात अब्बू को बताई तो वो भी हैरान ही रह गए। उन्हें अपने बेटे से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। हम भी अल्लाह के मौजज़े पर हैरान थे कि कैसे भाई के सर वही लड़की डाल दी गई जिसको उसने खुद ही अपने हाथों से बर्बाद किया था। पहले बता चुकी हूँ, हमारे ख़ानदान में तलाक का रवाज तो क्या, तलाक का तसव्वुर भी नहीं है। अब्बू ने भाई को साफ साफ बता दिया कि अगर तुमने दानिया को छोड़ने की बात की तो न सिर्फ तुम्हें जायदाद से आग कर दिया जाएगा, बल्कि तुम सारी उम्र हमें अपनी शक्ल न दिखाना। मेरा भाई आदतन बुरा नहीं था, खुदा जाने लम्हों की गलती उससे कैसे हो गई। शायद उसकी सोहबत का असर होगा। भाई का गुनाह उसकी बहनों को पता चल चुका था, जबकि उसका दोस्त जो उसके इस गुनाह में शरीक था, उसके सामने तो वो कभी सर उठाकर जी नहीं सकता था। बिलाखिर मजबूरन भाई को दानिया को कबूल करना ही पड़ा, मगर जो जिल्लत उसने उठाई वो खुदा किसी को न दिखाए। मैंने उसे अंगारों पर लौटते देखा है। और फिर वो शख्स जिसका ज़मीर मुकम्मल सोया न हो, जिसमें थोड़ी सी गैरत बाकी हो, एहसास जुर्म उसे जिंदा दरगोर कर देता है। कुदरत ने दानिया की मोहब्बत तो उसके दिल में डाल दी, मगर भाई का सुकून छिन गया। जिंदगी भर के लिए भाई सबकी नज़रों से गिर गया। हम बहनों के सामने आना तो दूर की बात, वो अम्मी अब्बू से भी कम ही मिलता था, क्योंकि जिस कदर भाई को हमने मान और इज्जत दी थी, अब वो सब उससे छिन चुका था। भाई कभी पीरों फकीरों के पास जाता और कभी साइकेट्रिस्ट के पास जाता, मगर उसे दिल का सुकून नसीब न होता। पछतावे की आग ने उसका सुकून राख करके रख दिया था। बिलाखिर किसी के मशवरे पर वो सहरोज़े पर गया। उसके बाद ये दौरानिया बढ़ता गया और भाई ने 3 माह 6 माह तक वहाँ लगा लिए। भाई अब यकसर बदल चुके हैं। साल में तकरीबन 6 महीने रोज़े रखते हैं और अपनी बीवी और बेटियों का बहुत अदब करते हैं। खुदा से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। दानिया ने तो उन्हें माफ़ कर दिया है, मगर शायद अभी तक वो खुद को माफ़ नहीं कर सके।